A very good morning 11th class. I am Vikas with your economics subject. Most welcome in online classes. So students, as you are aware that we discuss chapter 1 introduction and in statistics. So students, I hope you people have clear the definition of economics, human activity and definition of statistics. You are aware that economics has defined in two forms or two sense. Statistics defined in two sense, plural sense and singular sense. In plural sense, statistics, we define features of statistics or characteristics of statistics. You have already cleared this. There are four features of statistics. That is, I hope you need to a quick revision. That is, statistics, you can see in notes, that is, statistics are aggregates of fact. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इज नोन एज स्टेटिस्टिक्स. यानी कोई भी सिंगल यूनिट स्टेटिक्स नहीं हो सकती जब तक आप कंपेरिजिबल स्टडी नहीं कर लें. फॉर एग्जांपल, एज ऑफ अ सिंगल पर्सन, इट इज नॉट नोन द स्टेटिस्टिक्स. स्टेटिक्स कहाँ होगी? जब आप वेरियस पर्सन की एज को कंपेयर करोगे. मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन, स्टेटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेस. स्टेटिक्स क्या होती है? वो डिफरेंट थिंग से अफेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ अ गुड्स और यू कैन से डिमांड ऑफ ए गुड्स इज अफेक्टेड वेरियस हेड. फॉर एग्जाम्पल, if we are talking about demand, then demand will be affected by the income of the person, taste of the person, fashion of the commodity, etc. So you can say statistics is affected by multiplicity of causes. And another, statistics are numerical express. Numerical express means the statistics approach subject of numerical express. It is a quantitative measurement, not a qualitative. If you can say that he is good from this, from him, so it is not statistics because we cannot compare good or bad in qualitative term. It is clear. स्टेटिक्स वहां पर होगा जहां पर क्वांटिटी यानी मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स पॉसिबल होगा. एंड लास्ट वन, स्टेटिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस. स्टेटिक्स किस लिए होता है? जो उसके पहले से पर्पस होते हैं. विदाउट पर्पस आप डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे. आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट्स. क्लियर. सो टुडे वी विल स्टडी डेफिनेशन ऑफ स्टेटिक्स इन टर्म ऑफ अनदर सेंस, दैट इज सिंगुलर सेंस. Students, when we are talking about definition of statistics in a singular sense, we study the statistical methods in singular sense. According to statistician, this is a famous Croxton and Cowden statistician, define that statistics is a science. क्या कहते हैं? I am talking about in a singular sense. Statistics is a defined in a singular sense. In singular sense, he says that statistics is a science. और कैसा science? collection, presentation, analysis and interpretation of data. So he used 4 and 5 words: collection, organization, presentation and interpretation of data. And in singular sense, statistics means singular method. So we discuss one by one methods of statistics. You can see first is collection of data. It is the main and the first step of a numeric statistical inquiry. What is collection of data? In collection of data,
The technique of collection of data depend upon the objective of the study. Students, collection of data means data collected in the form of like सपोज दैट आप लोगों को टास्क दिया है कि यू हैव टू कलेक्ट द डाटा पॉपुलेशन ऑफ अ मोदीनगर सिटी, और यू कैन से अनदर पॉइंट लिटरेट और इलिटरेट पर्सन इन द मोदीनगर, और स्मोकर एंड नॉन स्मोकर ऑफ द पर्सन, कॉफी ड्रिंकर एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर, यानी कोई भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है और आप लोग क्या करोगे, मार्केट से कलेक्ट करके लाओगे डाटा. तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा. This is the first step in a statistical statement and is the foundation of statistical analysis. So जो पर्सन डाटा को कलेक्ट करके ला रहा है उसको बोलेंगे हम इन्वेस्टिगेटर, और जिस एरिया से हम डाटा को कलेक्ट करके आ रहे हैं इन्वेस्टिगेटर एरियाज. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? सो यू कैन डाटा कलेक्ट आइदर इज द on the spot of itself or may be collect by the other source. like आपने डाटा न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर लिया या किसी भी मैगजीन से. तो देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. सो वी विल डिस्कस अबाउट लेटर ऑन. सो फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स इट इज ए इंक्वायरी, किसी भी चीज से रिलेटेड इंक्वायरी और डाटा को मार्केट से कलेक्ट करके लाना. व्हेन कलेक्ट द डाटा, then we have to use second important step of the statistics after the collection, that is organization of data. Organization of data is the second step of the statistical series. It is clear to students? And what do you mean by organization of data? Organization of data means classification of data. Data को classified करना. And how can classify? After the collection of data, next step is to organize the collected data. Figures, which figures? Which are collected by you. Figures that are collected by an investigator. What do you mean by investigator? Investigator are those person who collect the data. It is clear to students? So figure that are collected by an investigator need to be organized by adding. And how can organize? By classify, by tabular presentation. like suppose that आप लोगों से मैंने लिटरेट और इलिटरेट काउंट कराए हैं, तो आप उसको कैसे क्लासिफाई करोगे? उसमें मेल एक तरफ ले लोगे, फीमेल एक तरफ ले लोगे, मे बी रिवाइज भी कर सकते हैं. in Modinagar, Adarsh colony one side, Modipol colony one side. To classify means according to their similarity and dissimilarity, classify the डाटा. यानी जब आप डाटा कलेक्ट करके लाते हो तो आप एक साइड से काउंट करते चले जाते हो, और देन आफ्टर आप क्या करोगे, उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करोगे. सपोज दैट कोई एज से रिलेटेड है तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो घर में जाकर सब पर्सन का काउंट कर लेंगे, और फिर मैंने आप लोगों से क्लासिफाई कराया कि भाई 50 अबो एज एक तरफ लो, 20 बिलो एज एक तरफ लो, एंड बिटवीन 20 to 50 एक तरफ लो. तो ये क्या हुआ बेटा, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. इट इज अ सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है, डाटा को मार्केट से कलेक्ट करना, और देन आफ्टर ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. आई होप 2 स्टेप्स क्लियर होंगे. एंड स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस. एंड इन सिंगुलर सेंस वी हैव डिस्कस द 5 पॉइंट, और दीज 5 पॉइंट्स नोन एज स्टैटिकल मेथड. गेटिंग? सो वी आर गोइंग टू इन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज presentation of data. And after the organization of data, presentation of data is a third point. Presentation of data. What do you mean by presentation of data? Data collected and organized are presented in some systematical manner. It is clear to students? Data collected and organized in systematical manner to make statistical analysis easier. The organized data can be presented with the help of table, diagram or graph. Yani how can presentation of data? Presentation of data, we can present the data in the form of table, in the form of diagram, and in the
form of graphic presentation. So data present in the form of tabular, diagrammatic and graphic. It is clear. How can table presentation and diagrammatic? We will discuss in one by one in a chapter form. नेक्स्ट चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ही आएगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा। अब आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर ही कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के नाम से होगा या क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो एक एक चैप्टर में आपको बताया जाएगा, और यहां पर मैं आपको एक ब्रीफ में नॉलेज दे रहा हूं स्टैटिकल सीरीज की, और यू कैन से स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? सो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, दैट इज टेबल, डायग्राम और ग्राफ। After the presentation of data, next step of analysis of data. This is a fourth statistical and in a singular sense, fourth step or fourth method, analysis of data. Analysis of data means क्या? The next step is the analysis of the presented data. Presented data, there are large number of methods by use analysis data, such as average. You can take average and use a mathematical technique like mean, like एवरेज से मीन निकाल लेते हो आप, मीडियन, मिड वैल्यू निकाल सकते हो अपने पूरे डाटा की, मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है वो निकाल सकते हैं, कोरिलेशन। It is clear to student? So analysis of data means use mathematical technique, and by the help of these mathematical technique we can calculate average of the series, we can calculate median of the series, average or mean, and we can calculate mode of the series and whatever if we want, we want. It is clear to student? So analysis of data means use mathematical technique of the data. I hope this point is also clear. Next one, interpretation of data. Interpretation of data means after the fourth point or after the analysis of data, now we are able to conclusion of your inquiry. Interpretation of data means given conclusion. After the analysis or after the fourth step of the collection of data, organization of data, presentation of data and analysis of data, now we are able to it is the final stage of the statistical method. Interpretation of data implies the drawing of conclusion, और कंक्लूजन किस बेस पे निकालेंगे? ऑन द बेस ऑफ अर्लियर प्री डिटर्मिनेशन पर्पज, जो भी जिस पर्पज से हमने डाटा को कलेक्ट किया है उसी के बिहाफ पर हम कंक्लूजन निकालेंगे। इट इज क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन सर्टेन डिसीजन कैन टेकन बाय, क्या डिसीजन ले सकती है गवर्नमेंट? सपोज दैट हम लोगों को लिटरेट पर्सन किसी एरिया में मिल रहे हैं, इलिटरेट पर्सन किसी में, तो हम वहां पर लिटरेट को, इलिटरेट पर्सन को पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सपोज आपको अनएम्प्लॉयड पर्सन मिले हैं किसी, यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हम पहले प्रॉब्लम्स होगी, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे, और देन आफ्टर कंक्लूजन जब निकाल लेंगे आप, तो देन आफ्टर क्या करेंगे? हम उसको उस पर स्टेप ले सकते हैं। ये तो एक स्टूडेंट्स के लेवल पे मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स इज ए वाइडर सब्जेक्ट। जब आप लोग कोई इंक्वायरी कलेक्ट कर रहे होंगे पूरे स्टेट लेवल पर, मे बी वर्ल्ड लेवल पर, मे बी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सपोज दैट गवर्नमेंट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताता हूँ, गवर्नमेंट कलेक्ट कराती है डाटा इन द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन काउंट कराती है, दैट इज सेंसस। हर 10 ईयर, आफ्टर द 10 ईयर इन 2011 हुआ था, देन आफ्टर इन 2020 पूरी कंट्री की पॉपुलेशन काउंट होगी। तो दिस इज बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। कैसे करते होंगे वो? पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करेंगे, इंक्वायरी क्या है उनकी, क्या उनकी प्रॉब्लम है कि हमें इस पॉपुलेशन को काउंट करना है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, अब वो पॉपुलेशन को ही काउंट नहीं करते हैं, उनकी एज वाइज, सेक्स रेशो, मेल फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, जो पर्सन आते हैं काउंट करने, वो सब कुछ पूछ के जाते हैं। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? देन क्या करते हैं? उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, टेबलों में फिक्स करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, एवरेज निकालेंगे, कितनी पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में है, कितनी पॉपुलेशन अर्बन में है, कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितनी अबोव पॉवर्टी लाइन है, कितने पर्सन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है, कितनी सेक्टर, यानी एनालिसिस करना वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम्स पे। और देन आफ्टर इंटरप्रिटेशन देने के बाद फिर गवर्नमेंट उस पर जो मेजर इंपोर्टेंट स्टेप्स है वो लेकर सोल्यूशन निकालती है। आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। स्टैटिक्स की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है, स्टैटिक्स इन अ सिंगुलर सेंस, इन सिंगुलर सेंस
स्टेटिक्स मीन स्टेटिकल मेथड्स। तो जब भी सिंगुलर सेंस की आता है, डेफिनेशन की बात आती है, तो यू हैव टू यूज द स्टेटिकल मेथड। मैं 3 और 4 बार बोल रहा हूं स्टूडेंट्स। स्टेटिक्स इज डिफाइंड इन 2 टाइप्स, दैट इज प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट प्लूरल सेंस, देन वी हैव टू explain the features of statics. Or what are the features? Statics is a aggregate concept. It is a multiplicity of causes and statics is a numerical express. It is clear to students? So this is the plural sense. And when we are talking about singular sense, in singular sense, statics means statistical methods. Or what are the method? Statistical method is collection, presentation, analysis and interpretation of data. I hope it is clear to students. So in singular sense, static is taken mean as a statistical method. Clear? Collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. So these method we have to use for collect any inquiry. और स्टूडेंट्स ऐसा भी नहीं हो सकता हम इन मेथड को हमेशा सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि पहले एनालिसिस कर दे देन आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। एनालिसिस किसका करेंगे हम? जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे। तो ये स्टेप बिल्कुल आपको सीरियल वाइज ही पढ़ने हैं और सीरियल वाइज ही हम इनको फॉलो करेंगे। जब भी आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, पहले मार्केट में क्या करते हैं हम? कलेक्ट द डाटा, देन आफ्टर ऑर्गेनाइज द डाटा, देन आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। यू कैन सी आई हैव अ टेबल फॉर्म। Yes, you can see stage of statistical study and the related statistical tools. First is stage first में क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स सेंसस ऑफ सैंपल टेक्निक। कोई भी टेक्निक होगी आपकी जो मार्केट से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। इन द स्टेज सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा अरे मीन्स अरेंज ऑफ डाटा एंड टेलीबार में क्या करते हैं हम? अब रिपीटेड डाटा को एक साइड कर देते हैं। एंड इन थर्ड वन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ tables, graphs and diagram. I hope it is clear to students. And in stage 4 analysis of data. एनालिसिस ऑफ डाटा आइदर इज परसेंटेज की फॉर्म में, आइदर इज एवरेज की फॉर्म में और कोरिलेशन की फॉर्म में। एवरेज आपके 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। क्लियर? सो दीज statistical study or these statistical method we will discuss in a whole statistics books. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? कलेक्शन ऑफ डाटा अपने आप में एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एक चैप्टर है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में तो 3 चैप्टर हैं। टेबुलेशन प्रेजेंटेशन अलग होगी, ग्राफिक अलग होगी, डायग्रामेटिक अलग होगी। ये तीनों चैप्टर बनेंगे बेटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में मीन अलग होगा, मीडियन अलग होगा, मोड अलग होगा, कोरिलेशन अलग होगा। एंड लास्ट वन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, average and the degree of relationship between different economic variable. I hope this is clear to students. And it was statistics in singular sense. In singular sense, these the methods of collection of data. Students, next topic is nature of statistics. Nature of statistics. And when the question regarding the nature of statistics come before us, then in our mind the point arise whether statistics is a science or an art or both. जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि स्टैटिस्टिक्स की नेचर। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की नेचर कैसी है कि भाई ये पर्सन बहुत ज्यादा लाफिंग करता है, ये बहुत सीरियस रहता है। सेम एज यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स की नेचर ये तो नहीं बताएंगे स्टैटिस्टिक्स लाफिंग करता है, सीरियस करता है। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट की नेचर को जब डिनोट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं तो वी हैव टू यूज कि दिस सब्जेक्ट इज साइंस और दिस सब्जेक्ट इज आर्ट और दिस सब्जेक्ट इज बोथ। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? सेम है जिसमें कि वेदर स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस और एन आर्ट और बोथ। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? साइंस पढ़ के आए हो आप 10th तक एंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। सो इफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, देन साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट देखो मैंने क्या लिखा है, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज स्टडी ऑफ नॉलेज और सिस्टमेटाइज
body of knowledge. Science is that body knowledge in which following characteristic. अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही होंगी तो आप किसी भी सब्जेक्ट को साइंस बोलोगे, अदरवाइज नहीं. फॉर एग्जाम्पल सिस्टमेटाइज स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी साइंस में क्या करते हैं हम, सारी स्टडी सिस्टम से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ देखो तो मैथ तो खैर बोथ है, साइंस एज वेल एज आर्ट. मैथ की अगर बात करते हैं तो सब कुछ सिस्टम में होता है. 2 और 2 4, पहले 2 का टेबल, देन 3 का टेबल, देन 4 का. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, मैम ने आपको प्रैक्टिकल कराए होंगे, सब कुछ सिस्टम में, पहले ये करो, देन आफ्टर ये केमिकल डालो, देन आफ्टर ये केमिकल करो, और इसके बाद ये इसका रिएक्शन हुआ. तो कैसा हुआ, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. यानी साइंस कैसे चलता है, सिस्टम से. सेकेंड थिंग्स, और देखो आर्ट में सपोज दैट आप कुछ ड्राइंग कर रहे हो तो जरूरी नहीं है जो स्टूडेंट्स ने पहला स्टेप यूज किया दूसरा भी वही यूज करे. भाई हमें एप्पल बनाना है, कोई लीव से स्टार्ट कर सकता है, कोई इसको एप्पल के फॉर्म से स्टार्ट कर सकता है. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, बट जब दोनों स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो सेम दोनों स्टेप बाय स्टेप सेम यूज करेंगे. तो साइंस की क्या फीचर्स है बेटा, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज स्टडी ऑफ नॉलेज. सेकेंड थिंग, इट्स मेथड्स आर सीरियल वाइज. साइंस के मेथड्स क्या होते हैं, सीरियल वाइज, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4. और इट्स रूल टू बी यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स इट इज ए, साइंस के रूल यूनिवर्सल एप्लीकेबल होंगे. जो ग्लोबल की केमिस्ट्री लैब या फिजिक्स लैब या बायो लैब में प्रैक्टिकल हो रहा है, उसी प्रैक्टिकल को आप अमेरिका किसी लैब में करोगे तो वही रिजल्ट वहां पर भी आएगा. क्लियर है नहीं है स्टूडेंट. तो इट रूल्स बी यूनिवर्सल नेचर. साइंस के जो नियम होते हैं वो कैसे होंगे, रूल्स, वो यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल एप्लीकेबल मीन्स हर जगह सेम ही रिजल्ट उनका आएगा. आई होप दिस क्लियर. और भी कोर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द कोजिस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू बी क्लियर. कोजिस एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है साइंस और में हमेशा क्या होता है, किसी चीज का कोजिस होगा देन आफ्टर उसका इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर में शुगर डालते हैं तो क्या होगा, वो मीठा बन जाएगा. और यानी कोजिस क्या था यहाँ पर, शुगर, और उससे पानी कैसा हुआ आपका मीठा. ऑन द अदर हैंड अगर आप उसमें सॉल्ट नमक डालेंगे तो क्या रिएक्शन करेगा, वो नमकीन बन जाएगा. यानी एक चीज का कोज है वहां पे वाटर, शुगर या साल्ट, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, आइदर इज नमकीन और आइदर इज मीठा. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट. सो साइंस में कोजिस और इफेक्ट की भी रिलेशनशिप होती है. It is clear. So you can say a scientist says statistics is not a science. ये क्या है, साइंस नहीं है. It is a scientific method. इसके मेथड कैसे होते हैं, साइंटिफिक. हम अभी मेथड की बात कर रहे थे जो आपने प्लूरल सेंस में देखा. स्टैटिक मेथड्स कैसे हुए, मैं आपको यहीं पे क्लियर करके चल रहा हूं. साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, क्योंकि हम वो कैसे पढ़ते हैं, सीरियल वाइज. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट. पहले कलेक्शन ऑफ डाटा किया, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा किया, फिर प्रेजेंटेशन और एनालिसिस. क्या उल्टा हो सकता है, अगर आप लोग वहां पे क्या कर रहे हो, कलेक्शन ऑफ डाटा किया आपने, ऑर्गेनाइज डाटा किया, यानी सिस्टमेटाइज स्टडी ऑफ नॉलेज. इट्स मेथड कैसे हो गए, सीरियल वाइज हो गए. और वो जो यहां पर हो रहे हैं वो पूरी कंट्री में होंगे, यूनिवर्सल भी है. तो वी कैन से स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से साइंस तो नहीं है बट इज साइंटिफिक मेथड. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. पूरी तरह से साइंस क्यों नहीं है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको स्टैटिस्टिक्स एज ए आर्ट में. It is clear to students. Now statistics as a science, then after statistics as a art. So what do you mean by art? What do you mean by statistics as an art? So students, if science is knowledge, art is action. Art क्या होता है, action, work को करना. In art solution the real life problem, because art means learning by doing. लर्निंग बाय डूइंग. आर्ट में करते करते हुए सीखते हो आप. बाय द हेल्प ऑफ क्रिएटिविटी, बाय द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस, बाय द हेल्प ऑफ पर्सनल स्किल. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट. सो साइंस इज नॉलेज, आर्ट इज एक्शन. अब आप लोग अप्लाई कर सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स आर्ट कैसे है. आर्ट में स्टूडेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट प्रिजडिक लगाता है. वो हर चीज में, आर्ट में देखो, साइंस में अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते. जो प्रैक्टिकल है जैसे हमें बताया है वही हमें करना होगा. अगर भाई अगर सेम रिएक्शन के लिए अगर हम कुछ अलग करते हैं तो वो कुछ अलग दिखाएगा. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट. तो सेम रिएक्शन के लिए वी हैव टू फॉलो सेम मेथड in the science, but in art different person use different personal skill. For example, business में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, in art is a personal prejudice. Personal prejudice means different person use different skill for a particular task.
फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैं आप लोगों को एक रूम को डेकोरेट करने के लिए बोल रहा हूं, अ डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट मेथड ऑफ डेकोरेशन। हर एक पर्सन उसी रूम को सेम गैजेट से डिफरेंट तरीके से उसको डेकोरेट करेगा। क्यों? क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी पर्सनल प्रिजडिक लगाई है। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? सेम एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक्स एज अ आर्ट, जब भी आप लोग कलेक्शन ऑफ डाटा, जब आप मेथड्स की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक्स साइंस है क्योंकि मेथड सीरियल वाइज है। बट व्हेन वी कलेक्ट द डाटा, जब आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो तो स्टूडेंट्स जो भी क्लास में आपके, वन स्टूडेंट्स में बी कलेक्ट द डिफरेंट मेथड एंड अनदर कलेक्ट डिफरेंट मेथड। एक स्टूडेंट हो सकता है कि गली के किसी भी कोने पे गया और उसने एक पर्सन को बुलाया कि सबका नाम मुझे यहीं बता दे, उस घर में कौन रहता है, कितने पर्सन रहते हैं, दूसरे में कौन रहता है, तीसरे में कौन रहता है, एंड सोन। इट इज क्लियर? और दूसरा कोई पर्सन है वो हर एक घर में गया और हर एक पर्सन से मिलके उनसे डाटा कलेक्ट किया, जी आपका नेम, आपकी एज, क्या करते हो, एक्सेट्रा। तो बोथ डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं दोनों, बट डिफरेंस क्या है? एक ने अपना कोई दूसरा मेथड अपनाया और एक ने दूसरा। जब भी स्टूडेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं तो दिस इज आर्ट, बिकॉज साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसमें हम पर्सनल प्रिजडिक नहीं लगा सकते। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? अभी आप बताइए, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस और आर्ट? स्टैटिस्टिक्स इज ए बोथ, इट इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। व्हाई? बिकॉज इट्स method is serial wise, then we can say statistics is a science. And collection of method, collection of data, when we use the personal prejudiced or personal skill or personal experience, then we can say statistics is a art. So statistics is neither art or neither science, it is a both. You can see this definition. You can see, where is my pen? Yes. Statistics is both a science and an art. It is science. Why science? Because its method are basically systematic. इसके मेथड कैसे हैं? Systematic and have general application. And an art because their successfully application depend to considerable degree on skill. किस पर डिपेंड करता है उनको सक्सेस करना? स्किल पर एंड एक्सपीरियंस पर ऑफ ए स्टेटिशियन। स्टेटिशियन मीन्स दोज पर्सन हु आर कलेक्टेड द डाटा, या स्टेटिक्स का जो भी पर्सन होगा। इट इज क्लियर? एंड ऑफ नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। दिस डेफिनेशन गिवन बाय द प्रोफेसर टिपिट। तो टिपिट क्या बोलते हैं? स्टेटिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? स्टैटिस्टिक्स क्या हुआ? ये दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी। कुछ साइंटिस्ट ने, स्टैटिस्टिशियन ने ये भी बोला है कि इट इज ए सॉफ्ट साइंस। क्या है ये? सॉफ्ट साइंस, ना कि हार्ड। ये इनकी तरह तो नहीं है, इनकी तरह किनकी तरह? साइंस इज बोथ आर्ट। ये जैसे आप लोगों के हार्ड साइंस इसको बोलते हैं यार, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उनकी तरह ना होकर ये सॉफ्ट साइंस है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ नॉट प्योरली साइंस और नॉट प्योरली art, it is a both. I hope this topic is also clear. Function of statistics, nature of statistics. Now a small topic, function of statistics. Function of statistics means there are 4 function. Function of statistics means what will we do in statistics. First is स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल डाटा। स्टैटिस्टिक्स का पहला फंक्शन क्या है स्टूडेंट? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेथड ए मास डाटा। मास डाटा मीन्स एक बहुत बड़े डाटा को क्या कर देता है? सिंपल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? बाय द हेल्प ऑफ टेलीबार, बाय द हेल्प ऑफ टेबुलेशन, बाय द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यानी हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जो एक डाटा समझ नहीं आ रहा होता है उसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। I hope it is clear to students. Second function, to make comparison of data in different phenomena and measure relationship between them. By the help of statistics, we can comparison of data. हम easily comparison कर सकते हैं different datas में। और comparison कैसे करेंगे? जब आप लोगों को statistics use हो रहा हो। Clear students? Statistics comparison data. Next one, statistics is helpful for policy formation. By the help of statistics, we have to use policy.
हम इससे पॉलिसी भी बना सकते हैं कि भाई सपोज दैट हमने डाटा को कलेक्ट किया, और पॉलिसी कैसे बनाएंगे कि इस एरियाज में हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि एरिया डेवलप हो जाए, यहाँ पर हम एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन build the policy. It is clear? And next one, statistics is helpful for forecasting purpose. It help not only estimated the present but it is always help in forecasting the future. Future के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है स्टैटिस्टिक्स, इसका एक ये भी फंक्शन है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? यू कैन एग्जांपल ऑफ कोविड-19 से स्टैटिस्टिक्स में कैसे हम फ्यूचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। In the COVID-19, we have used various problem. We have faced various problem. अब आपको प्रॉब्लम्स आई है तो गवर्नमेंट के सामने भी प्रॉब्लम्स आई होंगी। गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? डाटा कलेक्ट किए होंगे, कि भी इन फ्यूचर और रूरल एरियाज में किस चीज की नीड्स है, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस डाटा वी हैव टू रेडी फॉर फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर के लिए रेडी हो जाएंगे तो दिस मीन स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल फॉर फोरकास्टिंग पर्पस। फोरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर के लिए पहले से estimate कर लेना। It helpful not only estimating the present but it is also helpful in forecasting the future also. I hope it is clear to student. So today we have clear three topic. First is statistics definition in plural sense. Second things, nature of statistics, that is statistics is a science as well as art. And last one is a very small topic, function of statistics. It is clear to student. Tomorrow we will discuss importance of statistics and limitation of statistics. There are two topics in this chapter are left, only importance of statistics and limitation of statistics. Then after your first chapter will be complete. It is clear to student. So if you have any problem 11th class, आप लोगों ने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी बेटा। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।